Hello friends, I am Professor Sonia Dhotre. In previous lecture, we learned the open function of a file, difference between text file and the binary file, and the access modes of the file. In this lecture, we learn the open method, close method, and append method of the file. We already learned the open method of the file, how we open the file. Again, we learn the method opening the file with using with keyword. So it is a good practice to use the with keyword while opening the file, because if you use a with keyword while opening the file, then that file is automatically closed. This will explain with simple example. Suppose both the programs are for opening the file. This is a normal program we already done. F equal to file object, open method, then file name, access mode. If I want to check whether the file is closed or not, then I use a file attributes, which already learned in previous slide. F.close attribute. It returns a true value when file is closed, and if a file is open, then it returns the false. Means I am using a open method, normal open method. I am opening that file in the read-only mode, read a binary file. Then the output, when I run that Python program, the output is check if file is closed, that is false. Means the file is still opening. So here we require a close method to close a particular file. That method we see later on. Opening a file using with keyword. So my syntax is with. Instead of writing F, I am starting with is a keyword, then open method, that syntax and this syntax is same. Open, file name, access mode, then as F is my file container. Some difference in a syntax. With is start word, with then open method, as F is my file object or file pointer. Then colon. So after the colon we follow the indentation in Python. So I am writing print, check if file is closed, f.close, then output is true. Means even if I am not using a close function to close a particular file, the file was closed, because I use a with keyword while opening the file. So it is a good habit to use with keyword while opening the file, because it automatically closes the file. No need to use the close function if we use a file, if we open the file using with keyword. Next, loop on file. So we are already learned the while loop and for loop. We can use a loop while writing some contents in a file, while reading a file, while writing a file. We use a for loop. So syntax is same as a for loop. Same, I want to open a file abc.txt in a read only mode. Then for line in F, print line means abc.txt फाइल ओपन करने के बाद abc फाइल में जो जो कंटेंट्स है वो मुझे लाइन बाय लाइन रीड करना है, वो मुझे रीड करना है. जैसे आप लिखते हैं फॉर आई इन F इज माई फाइल, सेम लाइन यहाँ पे लिखा है, आप आई लिखो कुछ भी लिखो. और लाइन में F प्रिंट लाइन, यहाँ पे आई लिखा तो प्रिंट आई आएगा. तो abc.txt फाइल में जो जो भी है वो एज आउटपुट आएगा. सपोज मेरे फाइल में मेरे फाइल में था आई एम यूजिंग पाइथन, तो उसका आउटपुट आएगा आई एम यूजिंग पाइथन एंड बिफोर दिस बी आएगा, बी फॉर बाइनरी फाइल, और ये कंटेंट्स आएंगे. ऐसे मेरे प्रोग्राम में मेरे टेक्स्ट फाइल में एक ही लाइन थी तो एक ही लाइन आ गई. अगर आपके फाइल में नंबर ऑफ लाइन्स रहेगी तो ये पूरी लाइन्स वहां पे दिखाई देगी. और ये जो फाइल मैंने लिखी है abc.txt, इट इज इन अ पाइथन पाथ. पाइथन का जहां पे भी सेटअप रहेगा उस फोल्डर में उस फोल्डर में ही मेरी फाइल रहनी चाहिए, नहीं तो वो प्रोग्राम आपका एरर दिखाएगा. सो चेक इफ फाइल इज क्लोज, f.close फॉल्स आ गया, मैंने फाइल क्लोज नहीं की है और मैंने यूज की नॉर्मल ओपनिंग मेथड. यहाँ पे अगर मैं विथ यूज करती हूँ तो इसका आउटपुट ट्रू आता है. नेक्स्ट, क्लोज मेथड.
तो close a particular file we use a close method, means it closes the file object. जो open method create a file object, close method closes the file object. अगर फाइल क्लोज की तो आप फर्दर उसे रीड नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते. सो अगर आपको फाइल कौन सी भी रीड करनी है, राइट करनी, तो आपको फिर से वो ओपन करनी पड़ेगी. Python automatically closes a file when the reference object of a file is reassigned to another file. जैसे मैंने f इक्वल टू फाइल ओपन किया, मतलब f मेरा ऑब्जेक्ट है. अगर f इक्वल टू मैंने दूसरा कुछ फाइल लिखा, सपोज मैंने पहले लिखा f इक्वल टू abc.txt लिखा, उसके बाद मैंने f इक्वल टू pqr.txt लिखा, तो abc फाइल ऑटोमेटिकली उसका यूज नहीं रहेगा, तो फर्दर कुछ देर के बाद वो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज करेगा पाइथन. अगर वो एग्जिस्टिंग नहीं होगी, उसका यूज नहीं. सेम फाइल पॉइंटर आप से अलग अलग फाइल के लिए नहीं यूज कर सकते. जैसे f इक्वल टू मैंने abc.txt लिखा, तो मुझे दूसरे फाइल के लिए f1 f2 कुछ भी लिखना पड़ेगा, मगर f नहीं लिख सकती. So the syntax of closing the file object dot close, simple syntax. Close method frees up any system resources such as file descriptor, file logs, फाइल का जो भी रहेगा वो सब क्लोज करेगा. Moreover, there is an upper limit to number of files a program can open at a time. कितने फाइल्स प्रोग्राम में ओपन करना, उसके लिए एक लिमिट है. If that limit is exceeded, then the program may crash. So हम तो ज्यादा फाइल ओपन नहीं करेंगे प्रोग्राम में, मगर अगर स्पेसिफिक आप पाइथन का प्रोग्राम लिख रहा है तो उसमें कितने फाइल आप ओपन कर ले, उसके लिए एक हायर लिमिट रहेगा. उस लिमिट के आगे अगर आप फाइल सिर्फ ओपन करते गए नंबर ऑफ फाइल्स, तो वो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, वो एरर दिखाएगा. So you can waste lots of memory if you keep many files open unnecessarily. So we should have a habit to write a close function after completing a processing of particular file. अगर एक फाइल हमने ओपन की, उसमें कुछ रीडिंग किया, राइटिंग किया, उसके बाद हमें एक हैबिट होनी चाहिए कि वो फाइल हमें क्लोज करनी चाहिए अगर उसका यूज नहीं है तो. अदरवाइज यूज अ विथ कीवर्ड, डायरेक्टली वो ऑटोमेटिकली फाइल को आपके क्लोज करेगा. Also remember that open file always stand a chance of correction. ओपन रहेगी फाइल तो उसका डेटा लॉस होगा, करप्शन हो सकता है. Once the file is closed in the close method, any attempt to use the file object will result in it. मतलब हम फाइल ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते. फाइल ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक्सेस करना है तो we should open a file. ओके, नेक्स्ट क्लोज फाइल. ये सिंपल प्रोग्राम है, ऑलरेडी हमें देखा है कि फाइल को ओपन कैसे करना है. फाइल ऑब्जेक्ट, उसके बाद ओपन मेथड, फाइल नेम एंड उसका मोड. यहाँ पे अपने जितने भी मोड में आपको बताया कौन सा भी आप मोड ले सकते हो. चेक इफ फाइल इज क्लोज. एफ डॉट क्लोज से आप चेक करोगे कि फाइल क्लोज है कि नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स दिखा, क्योंकि मेरी फाइल नॉर्मल ओपन है तो वो क्लोज करने के बाद ही क्लोज हो गई. तो इसके लिए मुझे फंक्शन है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखा मैंने, और फिर से मैंने चेक किया इफ फाइल इज क्लोज, तो ये ट्रू दिखाएगा. मैंने जब मैंने यूजिंग क्लोज मेथड मैंने मेरी फाइल क्लोज की. नेक्स्ट, राइट मेथड. राइट मेथड इज यूज्ड टू राइट अ स्ट्रिंग टू ऑलरेडी ओपन. जो फाइल ऑलरेडी ओपन है उसको ही उसमें अगर हमें ओवरराइट करना है तो राइट मेथड हमें यूज करना है. इट रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स राइट इन अ फाइल. इट डज नॉट इंक्लूड दी स्लैश एंड कैरेक्टर. मतलब हम जो भी राइट करते जाओगे वो हॉरिजेंटली राइट हो जाएगा. अगर हमें एक एक लाइन एज अ राइट करना है तो स्लैश एंड हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. उसका सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट मेथड, और उसके बाद जो स्ट्रिंग हमें राइट करनी, जो स्ट्रिंग हमें चाहिए, वहां पे जो टेक्स्ट चाहिए, जो मैसेज चाहिए, वो उसमें डबल कोट में लिखोगे. सो यहाँ पे मैंने abc.txt फाइल ली, मेरा मूड है राइट, क्योंकि मुझे भी राइट करना है. f.write मेथड यूज किए मैंने. हेलो पाइथन एक लाइन लिखी, f.write से अगर दूसरी लाइन लिखी, हेलो ऑल होप आर एंजॉयिंग द लर्निंग ऑफ द पाइथन. अगेन थर्ड लाइन लिखी, कीप लर्निंग यूजिंग पाइथन, और उसके बाद फाइल क्लोज किए और प्रिंट किया डेटा रिटर्न इनटू द फाइल. देखो अभी ये फाइल में मैंने लिखा है, उसके बाद फाइल क्लोज किए, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? उसका आउटपुट ये सिंपल मैंने प्रिंट स्टेटमेंट जो लिखा है डेटा रिटर्न इनटू द फाइल, ये आएगा. और ये जो मैंने लिखा है, ये जो 3 लाइन लिखी है, ये 3 लाइन मेरी इस फाइल में आ जाएगी. तो अब जब आपके
फोल्डर में जाओगे पाइथन के और उस पे abc.txt फाइल आप खोल के देखोगे तो आपको ये सब प्रिंट हुआ दिखाई देगा, हेलो पाइथन, उसके बाद हेलो ऑल, होप ऑल आर यू एंजॉयिंग लर्निंग पाइथन एंड कीप लर्निंग। तो ये लाइन बाय लाइन आपको प्रिंट हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट मेथड इज राइट लाइन मेथड। अभी राइट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हर एक लाइन के लिए हम अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं। एक लाइन के लिए राइट लिखा, दूसरे लाइन के लिए फिर से राइट लिखा, तीसरे लाइन पर मुझे 100 लाइन्स लिखने तो मुझे 100 बार राइट मेथड लिखना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस ना आई एम यूजिंग राइट लाइन मेथड। तो ये मेथड का यूज ये है कि एट ए टाइम आप कितने भी सेंटेंस उसमें लिख सकते हो। राइट मेथड में आप सिर्फ एक सेंटेंस लिख सकते हो, राइट लाइन मेथड में आप नंबर ऑफ सेंटेंस लिख सकते हो। वो सभी सेंटेंस वन बाय वन एज ए न्यू लाइन आएंगे, मगर उसके लिए हमें स्लैश एन इंक्लूड करना पड़ेगा। हम नहीं किया तो न्यू लाइन पे नहीं आएगा। सो राइट लाइन मेथड इज यूज्ड टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स टू अ फाइल। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिखनी है तो राइट लाइन मेथड यूज करो, सिंपल एक दो सेंटेंस लिखने हैं तो राइट मेथड यूज करो। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी मेथड यूज करना है। दोनों मेथड का यूज है टू राइट अ स्ट्रिंग इन योर फाइल। सो फिर से मैंने यहाँ पे तो इसका सिंटैक्स मैंने लाइंस में सब लाइंस सेव किए, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं यूज किया है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यूज किया है। उसके बाद f डॉट राइट लाइंस और उसके बाद लाइंस, यहाँ पे वेरिएबल है, उसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक व्हाट यू से लिस्ट। तो ये यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है ब्रैकेट से, ब्रैकेट रिप्रेजेंट द लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट बनाई है, उसका नाम लाइंस लिखा है, कुछ भी लिख सकते हो। सो एफ डॉट राइट लाइंस इन पैरेंथेसिस लाइंस। उसके बाद फाइल क्लोज किए एफ डॉट क्लोज से और प्रिंट लाइंस आर रिटर्न इनटू फाइल। ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और ये जो कंटेंट्स है वो abc.txt फाइल में रहेगी। अगर ये कंटेंट्स अभी आपके और रिटर्न रहेगी अगर ये फाइल में ऑलरेडी कुछ रहेगा तो। नेक्स्ट लास्ट इज अपेंड डेटा इन अ फाइल। तो फाइल को अपेंड करना मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसके एंड में आपको अपेंड करना, मतलब उसकी जो ओरिजिनल पहले जो कंटेंट्स वो इरेज नहीं होंगे। राइट मेथड से ओरिजिनल कंटेंट्स डिलीट होके वहां पे वो राइट हो जाए। सो अगर हमें कुछ अपेंड करना है तो हमें अपेंड फाइल ए और एडी मोड यूज करना है। उसका सिंटैक्स रहेगा फाइल ऑब्जेक्ट ओपन फाइल नेम उसके बाद ए। तो उसका एग्जांपल है f इक्वल टू सेम, हमने फाइल ओपन की, a इज माय मोड एक्सेस मोड, आई एम राइटिंग कीप लर्निंग पाइथन। उसके बाद फाइल क्लोज की और एक सिंपल मैसेज प्रिंट किया डेटा एडेड टू द एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पे आउटपुट पर दिखाएगा ये जो प्रिंट किया एज इट इज। और कीप लर्निंग पाइथन abc.txt फाइल में जो भी कंटेंट्स रहेगा उसके लास्ट में कीप लर्निंग पाइथन ऐड हो जाएगा। So we all learn about the write method, open method, close method and append method in this video. Thank you.